अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन टू राइज एंड शाइन विद बेरिया। और अपनी मॉर्निंग्स का आगाज़ हम किस बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, दैट इज़ एक्सरसाइजिंग एंड अ गुड डाइट. You don't have to exercise that much, but at least wake up, eat something healthy, maybe go for a walk, a run. आजकल तो mornings वैसे भी they're very beautiful. So it is really great and healthy for you कि आप सब निकलें बाहर, माहौल देखें. Early morning walks, they're actually very fun. Maybe pop in some headphones, listen to some music. It's going to be very great. एंड आपकी मॉर्निंग वॉक आपकी ओवरऑल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट करेगी. सो मूविंग ऑन टू आवर शो, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमजा आफरीदी, विच इज़ अ वेरी इंटेलेक्चुअल एंड अ वेरी टैलेंटेड पर्सन फ्रॉम 8th सेमेस्टर ऑफ मीडिया स्टडीज़. ही इज़ अ renowned डायरेक्टर. ही टीचेस हिज टीचिंग्स एंड अपनी स्किल्स दूसरों को ही शेयरिंग इट विद दैम. तो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? हाउ इज़ योर मॉर्निंग बिन? I'm good, Maha. Thank you. My morning is great. I did some walk. That was pretty good. That is really nice actually. So did you have some coffee or tea, something like that? Yeah, I prefer coffee. I make it myself. I brew it You myself. do? That's So, really yeah, coffee cool. is That's really cool. life. Same, I love coffee Yeah. as well. So let's start with our talk. Yeah. So my first question is कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं to everyone here कि आपकी क्या talents and what do you like the most, passionate, what you're passionate about. Okay, so I've been doing photography and filmmaking since like 5th or 6th standard. Oh मुझे wow. बचपन से ही शौक था, हाँ, फोटोग्राफी करने का, फिल्म मेकिंग करने का. आई स्टार्टेड विद द फोन. तो जो लोग कहते हैं कि गियर डजंट मैटर या क्या कहते हैं इट्स नेसेसरी टू हैव अ गियर, ये आई थिंक दीज आर एक्सक्यूजेस. Definitely. या और उसके अलावा आई एम एन इंटरनेशनल ट्यूटर. Okay, I that's teach so cool. photography, filmmaking, how to direct, how to write scripts. Yeah. Yeah, as they say कि एक आर्टिस्ट का जो गियर होता है वो मैटर नहीं करता, द आर्टिस्ट मैटर्स themselves. आपने बहुत अच्छी बात की, दैट्स रियली नाइस. एंड आई लाइक टू से कि माई पैशंस आर ऑलमोस्ट द सेम एज Oh, योर्स, that's which will bring us on the same Yeah, page. yeah. So moving on, tell me about your favorite director. My favorite director would be Christopher Nolan. Really, and, there's no way. And Same. Wes Anderson. Yeah. Really? That's so cool. So what were your favorite works by Nolan? I like Nolan, like the Batman trilogy. आप अगर देखें how he plays with lights and how he has his signature shots. Oh yes, Like, definitely. Joker, I think Joker के एक कोई barrel shot है Batman की movies में. उसके अलावा he likes to play with time, as you see in Oh Interstellar. yeah, Interstellar, Yeah. Tenet, Tenet भी है, Inception. exactly. You know So, that thing you is know, there. these are like the top notch. और Wes Anderson भी मुझे बहुत पसंद है. Like particularly, like, if you see, Wes Anderson is quite opposite to Christopher Nolan. Definitely, you know? that is true. Those pop-up colors और क्या कहते हैं बहुत Mid shots हैं उसमें mid सारी. shots हैं और आपके क्या कहते हैं saturation colors की ज़्यादा होती Yeah. है. तो I don't know if you've seen एक है उसकी Wes Anderson की The Rat Catcher. Have you seen that? It's a short film. No, I have not, Or- but I've heard about it. do Definitely, watch it, definitely yeah. I'll watch it. मैंने Wes Anderson, I like him, but personally I feel like I like movies more जो dark side पे होती है. Okay, yeah. Fine. Like Quentin Tarantino. Fine. और Christopher Nolan, जिसने अभी recently Oppenheimer आई हुई थी, it was amazing. I don't know if you all have seen it or not. Trust me, it is worth it. You guys have to see it. कोई वजह है कि Oppenheimer को अभी तक इतने awards मिले and it's been nominated for so many Oscars. It's amazing. If you've missed out on it, you've missed out on a huge opportunity to go and watch it. And moving on, आपकी मीडिया फेस्ट में डॉक्यूमेंट्री प्ले हुई थी लाहौर के बारे में. जी. आई वॉज देयर माई सेल्फ पर्सनली एंड Okay. आई सॉ इट एंड आई लव्ड इट सो मच. Thank you. It was like I felt कि you were not only like showing me Lahore, I was feeling how you are in Lahore. Yeah, yeah. That was really great. So tell us a little about your experience. कि आपका कैसा रहा? Okay, so the Lahore documentary जो हमने बनाई उसमें ये था कि we were given the theme of tourism, you know, traveling and tourism in Pakistan. तो नॉर्मली जब आप टूरिज्म को देखते हैं तो आप नॉर्थन एरियाज पे जाते हो कि पहाड़ दिखा दोगे और लेक्स दिखा दोगे, यू नो, स्टफ लाइक Yeah, दैट. ऐसे ही होता है usually. एग्जैक्टली. बट हमारा ये था कि व्हाई डोंट वी शो लाहौर, बट शो लाहौर वर्चुअली, कि अगर कोई बंदा जो लाहौर खुद नहीं जा सकता और अगर वो उस डॉक्यूमेंट्री को देखे, he virtually gets in Lahore. Yeah, that was definitely Yeah, how so I I guess we were kind of successful in doing that. जी हमजा, जिस तरह आपने बताया कि आप डायरेक्शन बहुत अच्छी करते हैं एंड इट्स योर पैशन, तो आई गॉट टू नो कि आपने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी अबाउट लाहौर. एंड वो ऐसी डॉक्यूमेंट्री थी कि व्हेन आई सॉ इट माई सेल्फ आई लिटरली फेल्ट कि आई वाज ग्रास्प्ड इनटू लाहौर.
कि मेरे सामने स्क्रीन में कोई चीज़ नहीं थी. आई वॉज लिटरली ग्रास्प्ड इनटू इट. तो मैंने तो वो डॉक्यूमेंट्री देख ली है. अब मैं चाहती हूँ कि हमारे जो सारे व्यूअर्स हैं वो भी ये डॉक्यूमेंट्री देखें. तो आइए चलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री कैसी थी. लाहौर कहा जाता है कि ये शहर दिल है, लेकिन इस शहर का दिल बहुत बड़ा है. ये एक सदियों पुरानी दास्तान है जो जिंदा है, जिसकी हवा में मस्ती है, जिसके लहजे में जुनून है. इसकी सुर्ख ईंटों से बनी तंग गलियां तारीक नहीं रोशन है. ये शाहों का तख्त है, ये बुजुर्गों की मसनद है, ये दाता की नगरी है, ये वजीर खान का फन पारा है. लाहौर सबसे बड़ा नहीं, लाहौर बहुत बड़ा है. ये झूमने से थकता नहीं, ये घूमने से खत्म होता नहीं. इसका हर दरवाजा खुला है, बाहें फैलाए मुस्कुराहट सजाए. माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा. ए माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा. ए लोगा पाने मैं कतदी तंग तेरिया यादां दे पावा. ए माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा. ए माया तेरे वेखण नू चरखे दी ऊकर ते ओले याद तेरी दा तू बा बोले. चरखे दी ऊकर दे ओले याद तेरी दा तुम्बा बोले. ए निम्मा निम्मा गीत छेड़ के तंग कत दी हुलारे खावा. निम्मा निम्मा गीत छेड़ के तंग कत दी हुलारे खावा. बे माया तेरे देखण नू झुक चरखा गली दे विच डावा. बे माया तेरे देखण नू सजरा सवेरा मेरे तन बरसे, गजरा अंधेरा तेरी चौकी हो, कतरा मिला जो तेरे दर पर से. ओ मौला मौला. ये मस्जिद बादशाह औरंगजेब ने बनाई थी. फिर बादशाह औरंगजेब ने इधर बैठ के खुद ये मस्जिद बनवाई. आप जो भी सामान हिंदुस्तान से बुलाया गया तो ये मस्जिद उसने बनाई इबादत के लिए. इसमें 1 लाख आदमी रेडी टाइम नमाज पढ़ सकता है. 1 लाख. सिख की हुकूमत ही थी, उसने इस मस्जिद को बैरान कर दिया था, जानवर बांध दिए थे. फिर किसी गवर्नर ने आगे यहाँ से निकाले वो घोड़े वगैरह.
कि जहांगीर बादशाह था, एक मुग़ल सल्तनत का चौथा बादशाह था, तो जो कि 1627 ईस्वी में कश्मीर से लाहौर वापस आते हुए राजौरी के मकाम पर फौत हो गए थे। तो उधर से फिर यहाँ पे लाकर दफनाया गया है। तो उनके बेटे जानशीन थे शाहजहान, जिसके बेटे ने शाहजहान ने मकबरा तमीर करवाया था सर। ये बनाने में 10 बरस लगे थे और 10 लाख रुपए खर्चा इस पर आया था। जहांगीर बादशाह की कहा जाता है कि 2 कब्रें हैं। ये कब्र गुजरात पे है, तो मतलब कि गुजरात से आगे एक जगह भिम्बर के मकाम पर है जहाँ पे बादशाह की आंतड़ियाँ दफन हैं, और जो जिसद बॉडी है वो यहाँ पे ला के दफन किया था, उसमें ज़ाफ़रान भर के तो आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक तो यहाँ पे ला कर सर दफन किया गया है। मेरा नाम गुरजीत सिंह समरा, मैं इंग्लैंड रहने वाला। लगभग 1967 तो लैके मैं इंग्लैंड में रहना। सो असी लाहौर में आए सी इस साल गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाने ननकाना साहब विखे 27 नवंबर को असी मना रहे हैं, और असी 16 नवंबर को ननकाना साहब आए सी। अज लाहौर तीसरी बार अज लाहौर आए हैं। हमने अपने व्यूअर्स को दिखा दी है डॉक्यूमेंट्री। अब आए आपसे पूछते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्री का एक्सपीरियंस कैसा रहा। पहले आप मुझे बताएं कि आपने क्या चीज़ सीखी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? माय डॉक्यूमेंट्री एक्सपीरियंस वाज प्रिटी गुड, और मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि व्हेन यू आर आउट देयर शूटिंग, हमने 4-5 दिन शूट किया, तो किसी और सिटी में जाके शूट करना और अथॉरिटी से डील करना, इट वाज अ ग्रेट लर्निंग कर्व फॉर मी। या So what is one thing that you would say was a very memorable experience इस पूरी documentary making में? I think the capturing the essence of Lahore, you know, the old walled city of Lahore, और लोगों से मिलना जो वहाँ के बहुत पुराने रहायशी थे, और That was definitely और उनके चेहरे पे खुशी थी कि okay, someone is actually capturing us, they are giving us importance, और हमें मतलब एक coverage मिल रही है, so that those smiles, that was like my most memorable Definitely part. because I feel like कि लोग जो ये सारे cities हैं हमारे अंदरून पंजाब वाले, इनको बहुत लोग underrated समझते हैं. If you go there, if you explore, there's a lot to see. There's definitely a lot to see. Okay, so I want to ask you, you mentioned that your favorite movie trilogy was the Batman one. So tell me something, what was your favorite part about it? Who was your favorite actor in the entire series, and how it impacted you?
I guess I would say कि when I watch a movie, I try to fall in love with the character, not the actor that much, you know. क्योंकि actors definitely. change हो जाते हैं, but the character. They stay the same. Batman forever, you know, क्या कहते हैं, Batman is my favorite character, and Alfred, you know. और apart from the Batman trilogy, I would say my other favorite movie is The Beekeeper. ये अभी The recently. Beekeeper. Oh, I've heard about it. Yeah. I've heard about it. So you know the concept of that movie, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी. That's so, yeah. really nice. Personally, the Batman trilogy is also one of my favorites. Oh, Like that's nice. every time I see it again and again, it's like you gain a new knowledge. Exactly, yeah. Like you see Nolan's work in ways कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि oh this can also happen. And when you notice those things, there's such intricate, beautiful details. Exactly. Okay, so आप मुझे बताएं कि आपका यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस कैसा रहा है with groups, with projects, teachers, semesters, how has it been? My university experience is I guess very good. और मैंने काफ़ी कुछ सीखा इधर जो मुझे पहले नहीं पता था. और यूनिवर्सिटी यू नो बेसिकली आपको एक एनवायरनमेंट देती है ताकि आप Definitely. काम कर सको, ग्रुप्स में काम कर सको. मैंने ऐसे ऐसे लोगों के साथ भी काम किया जिनके साथ मुझे नहीं लगता था कि मैं काम कर सकता था. Definitely. और उसमें ही आप वो एक लर्निंग कर्व होती है, आप सीखते हो कि लोगों से कैसे डील करना है. और फिर जब हमने लाहौर की डॉक्यूमेंट्री शूट की तो वी हैड टू गेट परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज ऑफ लाहौर. अच्छा, तो that was a वो new हाँ experience. तो वो वाला भी there. एक लर्निंग कर्व था कि हाउ टू गेट प्रॉपर परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज. Definitely. I experienced something like this myself. Second semester में हमारी क्लास थी film studies की and we were supposed to shoot a short film. अब हुआ ये कि हमारा जो final scene था ना, we had to shoot it in a very secluded place. Okay. Because it was a kidnapping scene. Fine, yeah. अब we were a group, हम लोग गए, we decided कि hey let's shoot here. It was an underground parking, right? Okay. अब we didn't know कि हमने permission नहीं ली हुई and वहाँ पे इतना issue create हो गया. The authorities came and they were like why are you here? and फिर हमने उनको बताया कि हम shoot करने आए. तो we did get out of it, but it was a huge learning experience. कि अब आइंदा से कहीं पे भी shoot करना है, we know कि we need permission and we need to go in a place that's actually protected and secured. Yes, yes. तो that was a huge experience I for guess me as यहाँ well. पे अभी उस तरह से normalize नहीं हुआ ना shooting करना. Yes, And it's people- not as yeah. normalized. So people kind of don't. कुछ लोग understand नहीं करते, They कुछ get लोग को scared. समझाना पड़ता है. Some people get scared. तो but इंशाल्लाह hopefully कि हमारी जो media industry है इस्लामाबाद में इतनी हो जाएगी कि it'll be normal for shoots Yes, every day. yes. अच्छा, तो tell me about the hurdles you faced in your directing career. I guess the biggest hurdle that I always face while shooting something or directing something is to get permission from the authorities, you know. क्योंकि shooting का culture यहाँ पे इतना नहीं है, कैमरा बाहर लेके जाना इतना आम नहीं है पाकिस्तान में. So everyone's like कि ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और कार्ड्स आ question जाते हैं, it, authorities yes. आ जाते हैं कि यार permission Same दिखाओ, आपने experience. किससे बात की. So that's like the pain area. Yeah, that is, and I feel like some people just get too protective of their Yeah. things और वो shoot नहीं करने देते. उनको आपको समझाना पड़ता है कि you know ये yes, हम लोग yes, shoot yes. कर रहे हैं अपना and stuff like that. But hopefully इंशाल्लाह ये problem भी आहिस्ता आहिस्ता with time as new generations come by it'll be fixed. हम लोग जब शूट करेंगे बाहर जाके पब्लिकली और ज़्यादा कंटेंट बनाएंगे तभी तो नॉर्मलाइज होगा, वरना तो नहीं होगा. हाँ ठीक है. अच्छा, आप मुझे लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, आप मुझे बताएं कि आप जो फ्यूचर में, जैसा मैं खुद आई वांट टू गो इन डायरेक्टिंग, आई वांट टू परस्यू डायरेक्टिंग, और मेरी तरह के जितने अदर स्टूडेंट्स हैं दैट वांट टू परस्यू डायरेक्टिंग, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? For the coming students और जो भी डायरेक्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, आई वुड से कि डोंट लिमिट योरसेल्फ टू जस्ट वन जॉनरा. जब तक आपके पास टाइम है, लाइक इवन टिल मास्टर्स आपके पास 6 साल होते हैं ना, बैचलर्स 4 साल और फिर मास्टर्स 2 साल. तो कीप एक्सपेरिमेंटिंग टिल मास्टर्स. मतलब आई डू फूड स्टफ, फूड फोटोग्राफी completely different है from that is very from different. documentary filmmaking And direction, yeah, yes, yes. exactly. So how food photography or food filmmaking works, that's different. तो I keep experimenting. I even make cinematic videos जो कि documentaries से बिल्कुल different होती हैं. Yeah. So I would just say कि keep experimenting और अपना style पहले दिन से नहीं determine कर लो कि मेरा ये style है, because ठीक है. the world is very big and you have to kind of experiment a lot. Yeah, you have to diversify your Exactly. gene. क्योंकि आजकल के दौर में it's jack of all trades, master of none. आजकल ये चलता है. Yeah, पहले ज़माने में definitely. था कि master of one होता था, लेकिन अब तो Yeah, jack of all trades it's होना like चाहिए. you have to put your hand everywhere to gain a lot of skills. Yeah, क्योंकि आजकल जो जनरेशन आ रही है ना, in the society how it's building up,
It's very different. You need to be professional in many things to Yeah. be able to succeed. You have to shoot yourself, edit yourself, do the sound खुद करना design, पड़ता है, music, सब definitely. कुछ करना पड़ता है, you know. So, self-taught. कोई आके आपको सिखाएगा नहीं. You have to do it Same, yourself. same. Definitely, very beautiful tip for me and for everyone that's trying to achieve filmmaking. Yeah. Thank you so much for being our guest for today's Thank you show. for having me. So, जी viewers, आज का हमारा शो is about to end. As you all saw, हमारे यहाँ पे बहुत talented guests थे. हमने उनसे इतना कुछ सीखा about directing, film making और आप लोग को tips भी दी और उनकी documentary भी दिखाई. इंशाल्लाह मुलाकात होगी next बार. Thank you and Allah Hafiz everyone.